पढ़ते हैं। यस। Good afternoon to all my dear friends. I hope that I am audible and document is showing on your screen. Am I right? Yes, sir. Okay, thanks. Today I am going to discuss another landmark judgment prescribed in your syllabus. Name of this particular case is that Chetan J. Vaswani and another versus state of West Bengal and another. As you know that whenever I say another, it means one more person is appellant because here the name of the case is before the Supreme Court. Here the point is that another, it means here there were two appellants before the Supreme Court. If I write here other, it means more than two persons. But here the word is another rather than other. In the same situation, if you go to the respondent, here the state of West Bengal and another, it means one more respondent. Here we can say that exact name of the case is that Chetan J. Vasmani and another versus state of West Bengal and another. If you go to your previous year semester exam, you can find out some questions which is generally asked, which is based on this particular case. Once you read your previous year question paper, you become very clear what point you should have read in this particular case. Why I am going to discuss this particular case. So my point is that if I want to say in one line, one words, why I am going to discuss this particular case, my point is that I am going to discuss section 18 of the Immoral Traffic Prevention Act. Before some days, one girl student she asked about what is the provisions regarding the evictions. At that day, I clearly told you that section 18 talks about the eviction. Yeah, we can say that the section 18 talks about passing of order to vacate the premises. Why? थोड़ा सा लेते हैं इंट्रोडक्शन। भाई 1 घंटे का क्लास है, देखो मेनली ये 5 मिनट का ही केस है। अगर चाहूँ मैं तो 5 मिनट में समराइज कर सकता हूँ। इसमें कुछ खास है ही नहीं। सेक्शन 18 को डील करना है उसको मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब समझ सकते हो कि क्लास है ना, यूट्यूब का चैनल थोड़ी कि 5 मिनट में कंप्लीट कर दो, इसीलिए टाइम ले रहा हूँ। तो इसको सेक्शन 18 एज यू नो दैट सपोज दैट वन ब्रोथल इज रनिंग। अगर हम ब्रोथल के मैनेजर को अगर हम सपोज दैट स्टार्ट कर लिए और ब्रोथल के प्रीमाइसेस को, ब्रोथल के एरिया को हम सीज नहीं करेंगे, तो ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह डी आ जाएगा। तो यह जो प्रोस्टिट्यूशन रन कर रहा है उस प्रीमाइसेस में कंटिन्यू चलता ही रह जाएगा। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि व्यक्ति के साथ साथ उस एरिया को, उस हाउस को, उस रूम को, उस फ्लैट को, उस कन्वेंस को या एनी पोर्शन ऑफ हाउस, रूम, कन्वेंस, प्लेस, उसको भी हमें सीज करना है। तो हमारा जो सिचुएशन है, एक साइड दो चीज पर हम काम करते हैं। एक तरफ हम एक्यूज को इन पर्सन कन्विक्ट करते हैं, जेल में रखते हैं, एक सिचुएशन वहां पर है जिसको कि सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 दिस प्रोविजंस टॉक्स अबाउट पनिशमेंट। दूसरी साइड हम उस ब्रोथल एरिया को सीज करने का प्रयास करते हैं। कुछ समय पहले हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था कि दिल्ली का पड़पड़गंज एरिया, जहां से मिस्टर मनीष सिसोदिया जी इलेक्शन जीतते हैं, खैर पॉलिटिकली मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो भी है, तो वहां पर उस एरिया में मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास कर दिया और कहा कि इस एरिया के लोगों को फ्लैट, रूम, हाउस वैकेंट करना होगा। उसमें से 4 महिलाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दिया। उनका कहना था, मिलार्ड्स, जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, सेक्शन 18 क्लास 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर इशू किया था। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि इस एरिया को खाली कर दिया जाए, यहाँ पे ब्रोथल चल रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो महिलाओं का कहना था कि मिलाड, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि सेक्शन 18 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। माय पॉइंट इज दैट दोज हु लेडीज वर क्लेमिंग
that the provisions of section 18 is unconstitutional, and that's why any order passed under that particular section is invalid. Now matter is pending before the Delhi High Court whether the section 18 is constitutional or unconstitutional. But for sake of your knowledge, I want to say that in many judgments, even the Honorable Supreme Court has accepted that Section 18 is valid, and whatever rule has been framed under that particular sections, that is the good and valid. तो हमारे कहने का मतलब है, जब आप किसी व्यक्ति से उसका घर खाली कराते हैं, तो जब घर खाली कराते हैं तो उसके जो वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बूढ़े, सबको खाली करना पड़ जाता है। और वहां पे मोहर, सील मोहर उस हाउस पे लग जाएगा कि इस हाउस में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था और इसको आप इसलिए सीज किया जा रहा है। बताइए, अगर इस तरह का ऑर्डर किसी के घर पे लगा दिया जाए तो कल को अगर डिक्लेयर भी हो जाए कि नो, देयर वाज नो प्रोस्टिट्यूशन रनिंग इन दैट हाउस, लेकिन सोसाइटी क्या कहेगी? सोसाइटी को तो बस एक पॉइंट मिलना चाहिए कि हाँ, आपका घर सीज हो गया था, और क्यों? क्योंकि ब्रोथल रन कर रहा था। दिमाग में, आदमी के माइंड में हमेशा ही रहेगा। और इस तरह का ऑर्डर पास करते किसी का घर खाली करा ले, जैसे कोई एरिया है, इस एरिया में 10 घर हैं, इस एरिया में 50 घर हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है तो कुछ सिचुएशन में पूरे एरिया को खाली करा सकता है। सोच सकते हैं कि सेक्शन 18 कितना इफेक्ट कर सकता है। अगर आपके एरिया में, सोसाइटी में अगर 50 घर हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में 80 घर हैं, और हमारी सोसाइटी को कर दे कि नहीं, सोसाइटी में, पूरे सोसाइटी में चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, तो पूरे सोसाइटी को सील कर दिया जाएगा, तो कम से कम 300 से 4 लोग, 300 to 400 पीपल तुरंत अफेक्टेड हो जाएंगे और तुरंत घर खाली करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सेक्शन 18 को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसके द्वारा ऑर्डर पास किए गए ऑर्डर बहुत ही दूरगामी इफेक्ट रखते हैं, बहुत दिनों तक इसका प्रभाव रहता है। इसीलिए सेक्शन 18 को हम जब चैलेंज करेंगे तो हमें एक बात का ध्यान में रखना होगा कि सेक्शन 18 इज नॉट मेयरली अ प्रोविजन। Section 18 deals about such types of provisions is authorized the magistrate and court in some circumstances when they have power to pass an order to vacate the village, to pass an order to vacate the any part of the metropolitan city, कुछ भी खाली करा सकता है, उसके पास इतना पावर है। तो इस तरह के हमेशा ऑर्डर है, इसी सेक्शन 18 को हमें डील करना है। लेकिन जब हम सेक्शन 18 को डील करेंगे तो इसके आपको फैक्ट बताएंगे, और इसके फैक्ट में जब हम टोटल डिस्कस करने के बाद एक कंक्लूड करेंगे कि वास्तव में इसमें क्या हुआ था। कन्विक्शन हुआ था, कन्विक्शन के बाद ऑर्डर भी पास हो गया था कि इस एरिया को वैकेंट किया जाए। तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो आपका कन्विक्शन हुआ है, चेतन जी वसवानी का जो कन्विक्शन हुआ था वह सेक्शन 3 के अंतर्गत हुआ था और सेक्शन 7 के अंतर्गत हुआ। कन्विक्शन कहाँ हुआ था? सेक्शन 3 के अंतर्गत और सेक्शन 7 के अंतर्गत। सेक्शन 3 क्या कहता है? पहले एक दिन बताया था कि सेक्शन 3 को अगर कोई ब्रोथल कीप करता है, मैनेज करता है, रन करता है, तो वह व्यक्ति सेक्शन 3 में कन्विक्शन होगा। पहले दिन आपको बताया था जो लैंडमार्क जजमेंट था कृष्णामूर्ति कृष्णन वर्सेस समथिंग स्टेट ऑफ वर्सेस मद्रास, तो कृष्णामूर्ति कृष्णन के केस में क्या किया गया था? उसमें सिर्फ यही था कि डिफाइन किया गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोथल एंड वेदर इफ ही वाज रनिंग द ब्रोथल हाउ मच पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड। तो कृष्णामूर्ति केस was totally based on the section 2A, that is the meaning of the brothel, section 3, that is the convictions, whoever run the brothels, and the third point was that whether he had committed the first time offense or he had committed the second time offense. The gist of the Krishnamurti was that Honorable Supreme Court said that whatever that was going in that house, that was coming under the definition of brothel, first point. And in the Krishnamurti case, Honorable Supreme Court said that his previous conviction under the Madras Immoral Traffic Prevention Act will be amount to second conviction for the purpose of section 3. Why? Because convictions under previous law has been saved by the section 25 class 2 of the Immoral Traffic Prevention Act. तो वहां का जो केस था टोटल यहाँ सेक्शन 3 पर बेस्ड था। लेकिन चेतन जे वसवानी का जो केस है
कन्विक्शन हुआ है, सेक्शन 3 में भी कन्विक्शन हुआ है और सेक्शन 7 में कन्विक्शन हुआ है। सेक्शन 7 के दो पार्ट थे। पहले पार्ट को कवर कर रहा था, इसके कई क्लास है। सेक्शन 7 के क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। तो बेसिक जो आप कॉमन जो चीज समझते हैं आपके दिमाग में बस इतना ही है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस, खास तौर से यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब के आसपास के एरिया के विदिन 200 मीटर्स में अगर प्रोस्टिट्यूशन कोई रन कर रहा है तो उस प्रोस्टिट्यूशन, उस मामले में उस व्यक्ति का कन्विक्शन होगा। ये आपका बेसिक है। लेकिन सेक्शन 7 जो है सिर्फ इतने तक कन्फाइंड नहीं है कि 200 मीटर्स में अगर रन होगा तब क्या होगा। सेक्शन 7 एक वर्ड यूज करता है, पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस भी वर्ड यूज करता है, तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे। तो चेतन जेवस्वानी का जो कन्विक्शन हुआ था सेक्शन 3 में भी हुआ था और सेक्शन 7 में हुआ। तो चेतन जेवस्वानी को इससे बहुत गिला शिकवा नहीं था। चेतन जेवस्वानी वाज रेडी टू एक्सेप्ट दैट ही हैज बीन राइटली कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 3 एंड 7। चेतन जेवस्वानी इसको चैलेंज करने का प्रयास नहीं करता है, और चैलेंज करता भी है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसका पॉइंट नहीं बनता है, ये ऑलरेडी वेल सेटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर में अपील के लिए अलाउ किया ही नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है चेतन जेवस्वानी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मिलार्ड्स, हमें इससे दिक्कत नहीं है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 7 में हमारा कन्विक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ये बताओ, जब तुम्हें अपने कन्विक्शन से दिक्कत नहीं है, जब तुम एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि हाँ सेक्शन 3 और 7 में जो हमारा कन्विक्शन हुआ है वो ठीक है, तो तुम्हें प्रॉब्लम किससे है भाई। तो चेतन जेवस्वानी कहता है कि मिलार्ड्स, हमें प्रॉब्लम बस इसलिए है कि हमारे कन्विक्शन के बाद जो हमारा एरिया था, जो हम बार चला रहे थे, भाई बार तो समझते हो ना, बार जैसे होटल होता है, बार होता है, सब तुम सब समझ गए होगे, तुम सब हमारे स्टूडेंट होते इस तरह हो, बार समझ रहे हो ना तुम सब, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो नहीं तुम सब, बार क्या होता है। Yes, sir. यही होता है, पता ना उसको क्या बोलते हैं, मतलब बार बोलते हैं, बियर बार होता है, जो भी होता है बार, तुम समझ रहे हो। तो ये कहने का मतलब है मिलार्ड्स, जो हम लोग बार चला रहे थे, इसका बार में क्या होता था ये मैं बता दूं, बाकी इसके बार में ये हुआ था, फैक्ट जब आगे डील करेंगे। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था ना, इसने एक कोलकाता में एक एक स्ट्रीट है, ये जैसे कोलकाता सिटी है तो कोलकाता सिटी में एक स्ट्रीट है, उसका नाम भी आगे बताऊंगा, और उसी स्ट्रीट के पास में एक इसका बार है। एक बार बाद में एक दुकान है। इस दुकान में कहता है कि जो एंट्री है उसका भी चार्ज है। बार में एंट्री होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी घुस जाए कि हाँ चलो नया साल है तो हम कुछ खरीदेंगे नहीं, लेकिन माल में घूम करके आ जाएंगे। खासतौर से ये कमीनापंथी मैं करता हूँ, खरीदने की कुछ औकात नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं, 2 घंटे 1 घंटे माल में घुमाते दौड़ाते उड़ाते हैं, बस लेकर के आ जाते हैं, हो गया काम हो गया। तो उसमें क्या है कि इस तरह के बार में, माल में तो आप फ्री में घूम सकते हो, जैसे एक कल का है, खरीदो कुछ नहीं लेकिन घूमोगे पूरा माल, लगेगा कि पूरा माल उठा कर लेकर जाना है, खरीदो मजा लो। तो हमारे कहने का मतलब इस तरह की सिचुएशन में इसकी एंट्री पर भी फीस था कि ऐसा नहीं कोई घुस जाए। अब एंट्री होने के बाद आपकी चॉइस थी कि कौन सा ड्रिंक पीना है, किसके साथ ड्रिंक पीना है, मतलब इसके अंदर पूरी प्रोसीडिंग आपके पास थी कि जिससे कि आप सेक्सुअल डिजायर तक फुलफिल कर सकते थे। हमारे कहने का मतलब है कि इस बार में आपको शराब दारू के साथ साथ आपको प्रोस्टिट्यूट भी प्रोवाइड किया जा रहा था, और वह प्रोस्टिट्यूट गे वाला प्रोस्टिट्यूट नहीं, क्योंकि गे वाला प्रोस्टिट्यूट तो आपको 1986 के बाद आया है। उस समय जो प्रोस्टिट्यूट था वो सिर्फ लेडीज ही प्रोस्टिट्यूट के डिफिनेशन में आती थी, वुमेन ही प्रोस्टिट्यूट के डिफिनेशन में आती थी। तो हमारे कहने का मतलब है कि उस टाइम का जो प्रोस्टिट्यूट था ओनली द वुमेन एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे उनको वुमेन्स एंड गर्ल प्रोवाइड किया जा रहा था, और पार्टी बहुत जम करके चल रही थी। जैसे नया साल है ना, नया साल में भी देखना कई जगह रेव पार्टी पकड़ी जाएंगी, कई जगह, कल को न्यूज पेपर में पढ़ लेना, तुम सब भी डरो मत, जाओ एंजॉय करो। तो हमारे कहने का मतलब पार्टी जम करके चल रही थी उसी समय। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने तो स्टोरी टाइप में लिखा है, पूरा माहौल बनाकर, कितना टफ इंग्लिश लिखे हैं इसके फैक्ट को लेकर के कि हमने गूगल ट्रांसलेट भी करने का प्रयास किया, लेकिन उतना वो समझ में नहीं आ रहा था। बहुत अच्छी इंग्लिश है, कृष्णा अय्यर लिखे तो ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर। तो कृष्णा अय्यर लिखते हैं कि जैसे पर्दा गिरता है, जैसे होता है ना नाटक में,
जैसे ही पर्दा उठता है उसमें पुलिस की एंट्री हो जाती है, और जैसे ही पुलिस की एंट्री होती है पूरा माहौल चेंज हो जाता है। अब भाई आप किसी पोजीशन में है, शराब दारू है, आप प्रोस्टिट्यूट के साथ हैं, अब पुलिस की एंट्री हो जाए तो आप समझ सकते हैं कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो पुलिस की जैसे एंट्री होती है पूरे बार में भगदड़ मच जाती है, और जब बार में भगदड़ मच जाती है तो कई लोग उसमें अरेस्ट भी होते हैं। तो खैर यही इसका बेसिक फैक्ट है। तो इसका कन्विक्शन हुआ, वहां तक दिक्कत नहीं था, इसको इस बात का दिक्कत था कि हमारे बार को जो सीज किया गया है उसको गलत तरीके से किया गया है, वह सीज नहीं होना चाहिए। सीज हो जाने से दिक्कत होती है ना। जैसे मान लीजिए बार चल रहा है, ए हटा बी आया, बी हटा सी आया, सी हटा डी आया, सोर्स ऑफ अर्निंग हमेशा चलता रहेगा, बार चलता रहेगा। लेकिन अगर बार ही सीज कर दोगे तो कोई भी आ जाए वह रन नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो इस तरह का चीज है। और व्यक्ति का कन्विक्शन है, मान लीजिए आप किसी से, मान लीजिए यूनिवर्सिटी के बगल में जीटीबी नगर है, आपने एक बहुत बड़े एरिया को आपने हायर कर लिया और वहां पे आप इस तरह का बार चला रहे हैं, कल को आपका कन्विक्शन हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा उसको रन कर सकता है। लेकिन प्लेस अगर आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ इस प्लेस में प्रोस्टिट्यूशन रन कर रहा था, तो आदमी के माइंड में बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो बस इसका यही कहना था कि मिलार्ड्स, किसी तरह जो हमारे बार पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसी रेस्ट्रिक्शन को आप खत्म कर दीजिए, मोटा मोटा यही है। और इसी के लिए केस को लेकर के वो गया भी है। तो समझ में आ गया होगा कि ही डिड नॉट चैलेंज हिज कन्विक्शन अंडर सेक्शन 3 एंड 7, बट ही वाज चैलेंजिंग restrictions on the bar which had been imposed under section 18 class 1 and 18 class 2। ये तीन सेक्शन है जिसमें हमें डिस्कस करना है। 3 and 7 दिस टॉक्स अबाउट द पर्सन, ये दोनों सेक्शन पर्सन के कन्विक्शन की बात करते हैं, और सेक्शन 18 प्रीमाइसेस को क्लोज करने की बात करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्शन 3 और 18 में बेसिक अंतर क्या है, तो फर्स्ट बेसिक अंतर difference is that section 3 and 7 deals about conviction of the persons, while section 18 deals about the restrictions on the place। that is the point। सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 7 ये प्यूनिटिव नेचर के हैं। प्यूनिटिव, यहाँ पे अगर आपका सजा होगी तो आपको सजा मिलेगा 1 साल 2 साल, जो भी सजा बनेगा, प्यूनिटिव नेचर का पनिशमेंट देता है। और सेक्शन 18 प्रिवेंटिव नेचर का है। प्रिवेंटिव नेचर का यह है कि हम चाहते हैं कि इसमें एक बार जो हो गया सो हो गया, फ्यूचर में इस जगह पे इस तरह का प्लेस, इस यहाँ पे बार रन नहीं करना चाहिए। तो सेक्शन 3 and 7 talks about the person, section 18 talks about the place, first point। Second difference is that section 3 and 7 deals about the punitive nature, deals about the punishment। section 18 deals about the प्रिवेंटिव नेचर। ये इसका बेसिक पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं दिक्कत हो रही। नो सर। हाँ, नाउ पॉइंट इज द फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस जो मैं बताना चाह रहा हूं, इसमें ये कह रहा है कि चेतन जे वसवानी एंड अनदर अब क्या कर रहे थे, तो बता दिया कि हाँ बार चला रहे थे, बार में कैसे शराब दारू मिल रहा था, लड़की मिल रही थी, वो सब चीजें मैं डील कर दिया, उसको डील करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कहता है कि चेतन जे वसवानी और उसका फ्रेंड कीपर्स के डिफिनेशन में आते हैं, क्योंकि सेक्शन 3 कहता है कि कीपर्स ऑफ द ब्रोथल। सेक्शन 3 मैनेजर वर्ड नहीं यूज करता है, सेक्शन 3 प्रोप्राइटर वर्ड यूज नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति कीपर के डिफिनेशन में नहीं आ रहा है तो सेक्शन 3 का क्लास 1 अप्लीकेबल नहीं होगा, तो कीपर्स वर्ड यूज करना पड़ेगा। लॉ में एक ही चीज खासियत है, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा मार्क्स कम मिलता है। सेमेस्टर का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि सेमेस्टर में आपको मार्क्स कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, क्यों मिलता है, उसका तो मैं नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जो जुडिशरी का होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर होते हैं, उसमें वर्डिंग पर मार्किंग मिलता है। आपको कहाँ जो वर्ड यूज करना है, जो प्रॉपर वर्ड यूज करना है वही आप यूज करिए। अगर ब्रोथल है तो ब्रोथल ही यूज करिए, कीपर है तो कीपर ही यूज करिए, कि हर एक चीज का एक वर्ड डिफाइन हो जाता है ना। और जो वर्ड डिफाइन हो गया लॉ में, उसको अपने वर्ड में लिखने का प्रयास करोगे तो समझ लो कि खतरे से खाली है नहीं, 100% तो लिख नहीं है सकते हो। तो एक कह रहा है कि जीतन जे वसवानी और उसका फ्रेंड कीपर थे। किस चीज के कीपर थे? एक पब्लिक प्लेस था, उसके कीपर थे। पब्लिक प्लेस में क्या है? एशियास बार,
एसियास बार, बार जो है पब्लिक प्लेस है ना भाई, पब्लिक प्लेस है, क्योंकि वहां पे कोई भी व्यक्ति पैसा देकर के एंट्री कर सकता है, पब्लिक प्लेस है। तो इस तरह का सिचुएशन है, ये दोनों ही कीपर होते हैं पब्लिक प्लेस का। और एशियास बार, दैट इज द बार इज द पब्लिक प्लेस। कई जजमेंट आए हैं जिसमें बार को, होटल को, यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, मंदिर को, मस्जिद को पब्लिक प्लेस माना गया है। तो एशियास बार भी पब्लिक प्लेस है। दे वर कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 7 क्लास 2A। 2A में कन्विक्शन हुआ है और 3(1) में कन्विक्शन हुआ है, बट एक्विटेड अंडर सेक्शन 7(2)B में। अब देखो, कन्विक्शन उनका हुआ है 2A में और 3 में, लेकिन उनका एक्विटल हुआ है 7(2)B में। अब तुम कहोगे कि सर जब ये सब चैलेंज कर ही नहीं रहा है कि हमारा कन्विक्शन किस सेक्शन में, तो आप इतना बारीकी से क्यों जा रहे हैं? तो 2A में सेक्शन 7(2)A में कन्विक्शन हुआ है और सेक्शन 7(2)B में एक्विटल हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो डिफेंस लेगा, जब सेक्शन 18 पर आर्गुमेंट करेगा तो यही कहेगा कि मिलाट्स, मेरा कन्विक्शन सेक्शन 2A में हुआ है, मेरा कन्विक्शन 7(2)B में नहीं हुआ है। जब 7(2)B में नहीं हुआ है तो मेरे जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसको आप हटाइए। इसलिए हम आपको बताएंगे कि सेक्शन 2A सेक्शन 2B में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस बहुत ही मायने है और इसी बारीकी को हमें धीरे से समझना होगा। फिर मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया है कि सेक्शन 2A डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफाइड एरिया आर 200 मीटर्स। सेक्शन 2A में उस व्यक्ति को कन्विक्शन किया जा सकता है चाहे वह 200 मीटर के दायरे में हो या स्टेट गवर्नमेंट जो स्पेसिफाइड एरिया घोषित कर रही है उसके दायरे में हो या उसके बाहर हो। अगर आप पब्लिक प्लेस पर अगर प्रोस्टिट्यूशन रन कर रहे हैं तो सेक्शन 2A में कन्विक्शन हो जाएगा, लेकिन 2B में तभी कन्विक्शन होगा, सेक्शन 7(2)B में, जब वह बार पब्लिक प्लेस हो और साथ साथ में स्पेसिफाइड एरिया या 200 मीटर के दायरे में रन कर रहा हो। एक एग्जांपल लें, रुक जाओ एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, कह रहा है, हाँ एक कह रहा है यहाँ पे देखो, सेक्शन 2A डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफाइड एरिया और 200 मीटर्स। एक बार है, हम एक बार है, बी से बार हुआ। अब बार के दो कैटेगरी हैं। अगर ये हमारी लॉ फैकल्टी की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और ये बार का डिस्टेंस पहले एक रखते हैं। अब बार ये जो है, ये एरिया जो मैं कवर कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा टाइम लगेगा, ये एरिया 200 मीटर के दायरे में है। तो बार कहाँ पे है? 200 मीटर से बाहर है या 200 मीटर के अंदर है? 200 मीटर के बाहर है। जब 200 मीटर के बाहर है तो क्या अगर एक व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन रन कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रन कर रहा है, 50 लड़कियों को रख रखा है, 10 लड़कों को रख रखा है और रन कर रहा है, तो क्या इस व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं होना चाहिए? भले ही 2 मीटर के दायरे में हो या 200 मीटर के दायरे से बाहर हो। तो जब 200 मीटर के दायरे से बाहर होगा तब उसका कन्विक्शन सेक्शन 7 के 2 में के ए में हो सकता है। सेक्शन 7 के 2 के ए में हो सकता है क्योंकि वह बाहर है, लेकिन पब्लिक प्लेस है और प्रोस्टिट्यूशन को रन कर रहा है, सेक्शन 7(2)A लागू हो सकता है। क्योंकि कह रहा है कि सेक्शन 7(2)A डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफाइड एरिया और 200 मीटर्स, तो सेक्शन 2A लगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे होटल चला रहा है, यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे ही एक होटल चल रहा है, और उस होटल में जैसा कि तुम लोग जानते हो प्रोस्टिट्यूशन भी चल रहा है, उस होटल में प्रोस्टिट्यूशन भी चल रहा है और 200 मीटर के दायरे में आता है, तो यहाँ 7(2)A लगेगा या सेक्शन 7(2)B लगेगा? क्या लगेगा भाई?
बताओ तुम सब। Section 7 to B. सेक्शन 7 टू बी लगेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो एक बार जब भी तुम लोग अगर मेरा क्लास लेते हो ना, तो मोबाइल से मत लिया करो। मोबाइल पे कोई स्क्रीन नहीं आती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, वो फॉर्मेलिटी है। अगर नहीं है लैपटॉप तो भाई कहीं भी ले लो, अदरवाइज तुम अपने लैपटॉप पर लोगे तो तुम्हारा क्लास ये सब जो लिख रहा हो ना उसको पढ़ सकते हो, चार्ट बना रहा हूँ उसको समझ सकते हो। अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अगर जब बाहर जाएगा 200 के मीटर के बाहर, तो सेक्शन 7 टू ए के अंतर्गत कन्विक्शन होगा। लेकिन जब अगर ये अंदर रहेगा तो सेक्शन 7 टू बी लग जाएगा। सेक्शन 7 का क्लास 2 का क्लास बी लगेगा। अब इस केस का फैक्ट बता दूं कि जो एशियास बार था वह 200 मीटर के बाहर था। क्या था? 200 मीटर के बाहर था। इसीलिए यहाँ पे जो कन्विक्शन हो रहा है व्यक्ति का, उसका कन्विक्शन 7 टू ए में हो रहा है। सेक्शन 7 टू ए में हो रहा है, लेकिन सेक्शन 7 टू बी में उसका एक्विटल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 7 टू बी का एक्विटल का मतलब है his bar was not located within 200 from the specified from the public institutions like university, college, hotel, religious institution. His bar was situated outside the 200 meters or specified area. तो इसलिए यहाँ पे सेक्शन 7 टू ए लागू कन्वेक्शन होता है, सेक्शन 7 टू बी में एक्विटल होता है। लेकिन अपने एक्विटल को आधार बना करके इस सेक्शन 18 को चैलेंज करेगा। बोलो, बताओ सेक्शन क्या, पहले ये भी बता दो। नहीं, तुम अपना सेक्शन बताओ ना, तुम्हारा कौन सा सेक्शन है। तो बाद में पूछ लेना, ठीक ना। क्लास में रिकॉर्डिंग खत्म करूंगा 11 बजे के बाद, तो 10 मिनट टाइम दूंगा। चाहे किसी भी सेंटर का कोई भी हो, अपना क्वेश्चन पूछ लेना। लेकिन बस जब तक क्लास चल रहा है सिर्फ ई और एफ सेक्शन के स्टूडेंट की क्लास पूछिए। आज 10 मिनट तुम लोग को दूंगा टाइम, ठीक ना। बस रुक जाओ थोड़ा सा। इसको लेकर के तुम्हारे सेमेस्टर का क्वेश्चन मैं रीड करना चाहता हूँ। उसके क्वेश्चन कह रहा है, 2018 में क्वेश्चन आता है कि वाई इज अ बार। वाई एक बार है जिसका मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में एशियास बार ही रख देते हैं। वाई एक बार है जो कहाँ पे लोकेलिटी है, उसकी दिल्ली में लोकेटेड है। और जो तुम्हारे फैक्ट का लोकेलिटी कहाँ है, वो कलकत्ता में लोकेलिटी है। वो फैक्ट के हिसाब से वो तुम्हारा जो केस का फैक्ट है वह एक बार कोलकाता में स्थित है, लेकिन प्रॉब्लम में बार कहाँ पे स्थित है, बार दिल्ली में स्थित है। और बार सिचुएटेड कहाँ है, सबसे पॉइंट क्या है, इट इज सिचुएटेड वेरी नियर टू टेम्पल। यही वर्ड जो है तुम्हें प्रॉब्लम बताएगा कि आंसर इसका 2 निकलेगा। इसी लाइन से आंसर 2 निकलेगा। वर्ड क्या लिखा हुआ है, इट इज सिचुएटेड वेरी नियर टू टेम्पल। अब कितना नजदीक, क्या 200 मीटर के नजदीक, 200 मीटर के अंदर, 300 मीटर के अंदर, 500 मीटर के अंदर, यहीं से आंसर 2 निकलेगा। यही से स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि दोनों साइड से आर्गुमेंट करेगा। यही से स्टूडेंट हम उम्मीद करेंगे कि स्टूडेंट जब लिखेगा कि सर हियर द ओनली नियर टू टेम्पल वर्ड हैज बीन रिटन, पार्टिकुलर distance has not been written. So if temple is situated, if temple is situated within 200 meters from the temple, answer will be this. If temple is situated outside the 200 meters, in that situation answer will be that. तो यहीं पर 2 आंसर आएगा। इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेरी नियर टू टेम्पल। यहाँ मीटर नहीं लिखा हुआ कि 200 मीटर है कि 300 मीटर है कि 500 मीटर। अगर यही मीटर लिख दिया जाता तो आंसर बहुत ही क्लियर हो जाता। मीटर हम लिख देते, तो अगर 200 मीटर के अंदर है तो हम कहते हैं कि 7 टू बी लगेगा। 200 मीटर के बाहर है तो हम कह देते हैं कि सेक्शन 7 टू ए लगेगा। आंसर बहुत ही सिंपल हो जाता और प्रॉब्लम बनता ही नहीं। लेकिन लिखा है कि नियर टू टेम्पल। एक दिन क्या हुई, दुर्भाग्यवश चल तो रहा था डेली, तो वन डे पुलिस रेडेड द प्रीमाइसेस। कई बार होता है ना कि आप कभी नहीं जाते हैं और जिस दिन जाते हैं उसी दिन घटना दुर्घटना घटित हो जाती है। तो पुलिस क्या करती, एक दिन वन डे
पुलिस रेडेड द प्रीमाइसेस, उस प्रीमाइसेस पर रेड डाल दिया। जब रेड डाल दिया तो अरेस्ट कर लेती है पुलिस। अरेस्टेड द प्रोप्राइटर एंड मैनेजर ऑफ द बार। और तुम्हारे केस में क्या कह रहा था? तुम्हारे केस में भी तो यही था ना कि बार सिचुएटेड था और चेतन जे बसवानी और उसका फ्रेंड कीपर थे, दैट इज द प्रोप्राइटर और मैनेजर थे, और दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो दे वर पनिश्ड अंडर सेक्शन 72A, रीड विद सेक्शन 3। दोनों को पनिशमेंट भी दिया गया। कहां पे दिया गया? 72A में दिया गया और 3 क्लास 1 में दिया गया। लेकिन एक्यूटल कहां पे हुआ? एक्यूटेड अंडर सेक्शन 72B ऑफ द क्रिमिनल प्रिवेंशन एक्ट। तो आपको इसी का आंसर देना है। This problem is totally based on the facts of the Chetan J. Baswani case with certain modifications, but provisions is the same. There is no problem. If you are able to understand the provisions of this particular case, you can understand. ठीक ना? चलो भाई तुम अपना क्वेश्चन पूछो तो शायद और मैं क्लियर उसको कर सकूं, इस प्रॉब्लम को। पूछना तो प्लीज आस्क क्वेश्चन। हाँ सेक्शन 2B में 200 मीटर नहीं लिखा है। हाँ अच्छा, तुमने ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। लिसन मी स्टूडेंट ही इज आस्किंग, कह रहा है कि सेक्शन सर मैंने सेक्शन 72B पढ़ा। बेरट है ना बाबू तुम्हारे पास? बेरट लिया हो कि नहीं ये बताओ। इसने कहा कि सर हमने जब सेक्शन 72B पढ़ा तब उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 200 मीटर के बाहर होना चाहिए या अंदर होना चाहिए। नहीं लिखा है ना? एक बार तुम बेरट पढ़ो, उसमें लिखा होगा कि एज सबसेक्शन 1। पढ़ो बेरट एक बार, प्लीज रीड। देखो, रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। अब 72B ने रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 कर दिया, ठीक ना? अब तुम सबसेक्शन 1 पढ़ो क्या कहता है। बस इतना ही है? आगे पढ़ो, कुछ होगा। रुक जाओ मैं एक बार देखता हूँ। नहीं रुक जाओ मैं समझ गया। रुक जाओ तुम एक मिनट, मुझे भी देखने दो। अरे एनी प्रीमाइसेस के बाद भी तो पढ़ोगे ना यार। भाई क्लास ए और क्लास बी कौन पढ़ेगा? भाई तुमने इतना ही पढ़ा कि एनी पर्सन हु कैरीज ऑन प्रोस्टिट्यूशंस एंड पर्सन विथ हुम सच प्रोस्टिट्यूशन इज कैरीड ऑन इन एनी प्रीमाइसेस। उसके आगे दिया हुआ है, उसके आगे जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कवर ही नहीं होगा। उसके आगे दिया हुआ ना क्लास सब क्लास ए सब क्लास बी दिया है ना। तो जब सब क्लास बी पढ़ोगे तो या तो एक ए नोटिफाइड एरिया, या जब बी पढ़ोगे तो बी लिखा हुआ ना कि विच आर विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स। तो हमारे कहने का मतलब है कि ए और बी भी जो है क्लास 1 के पार्ट ही हैं। अगर हम रेफर कर दें कि एज मेंशन अंडर सेक्शन 7 क्लास 1, तो एज मेंशन अंडर सेक्शन 7 क्लास 1 का मतलब ये हो गया कि जो बातें क्लास 1 में लिखी गई हैं वह बातें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगी। उसको ए और बी को अलग अलग डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जब आओगे, अब सेक्शन 7 के क्लास 2 में आ जाओ। क्लास 2 कहता है कि क्लास 2 में कहीं नहीं लिखा हुआ है क्लास 2 सब क्लास ए। इसमें न ही रेफर करता है क्लास 1 को और न ही 200 मीटर लिखता है। लेकिन बी जो कहता है कि 200 मीटर भले नहीं लिखता हूं, लेकिन लिख रहा है ना कि आप एनी प्रीमाइसेस रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। एनी प्रीमाइसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया?
कि जो 200 मीटर्स का है या एज प्रिस्क्राइब्ड वाला कंडीशन है वो बी में लागू होगा, लेकिन यही सबसेक्शन 1 जो है ए में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है ना ए में नहीं लिखा है, लेकिन बी में लिखा है। बी के लिखने के वर्ड की वजह से हम मान के चल रहे हैं कि सेक्शन 2 बी जो है डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट करता है कि इतने भीतर के भीतर है तब 2 बी में आएगा। ए डिस्टेंस का रिक्वायर नहीं करता है, इसलिए 2 ए में विदाउट डिस्टेंस होगा। हमने जब प्रॉब्लम बनाया तो हमने बनाया ना कि दिल्ली लॉ फैकल्टी के जो दायरे में 200 के दायरे में आएगा, वहां पे सेक्शन 7(2)(b) लागू होगा, लेकिन जो 200 के बाहर जाएगा उसे 2A लागू होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप तुम समझ गए होगे। थैंक यू बोल दो यार प्यार से, थैंक यू बोलो। इतना जबरदस्ती बोलने लग रहा है कि मार के भागना है तुम्हें। और किसी को डाउट नहीं है ना? खैर मजाक कर रहा था। और किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यही देखो प्रॉब्लम बता रहा था कि 200 के दायरे में अगर आएगा तो 7(2)(b) लगेगा। अब तुम कहोगे कि एक बार अब यहीं पे लिख ही देता हूँ रीजन क्या है, क्यों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 7(b) लगेगा। इसका बस रीजन है कि एक क्लास कहता है कि एज रेफर्ड अंडर सब सेक्शन 1, इसका सब सेक्शन 1 दैट इज द सेक्शन 7 का। आप सेक्शन 7 कर सकता हूँ, आप सेक्शन 7 ये मेंशन कर देता है, ठीक ना। लेकिन जब हम ये इसकी बात करते हैं, जब इसकी हम बात करते हैं तब, लेकिन जब हम बाहर की बात करते हैं, इसकी हम कैसे बात कर दिए कि भाई जा रहा है, इसकी बात करने के लिए हम देखे हैं कि इस मामले में ये नहीं लिखता है कि हियर नॉट हैज बीन रिटेन, नॉट हैज बीन रिटेन, नॉट हैज बीन रिटेन सबसेक्शन 1, यहाँ पे सबसेक्शन 1 जैसा वर्ड नहीं लिखा गया है। और न ही यहाँ पे कुछ मीटर लिखा हुआ है, नॉट मीटर, यहाँ पे कुछ मीटर भी नहीं लिखा हुआ है। यही दोनों में बेसिक अंतर निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे पढ़ाते हैं। तो हमारे कहने का पॉइंट यह है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम था तुम्हारा, होल्ड करें एक मिनट, यहाँ पे यही प्रॉब्लम था कि वाई बार लोकेलिटी दिल्ली में है, नियर टू टेम्पल है। अब कितना नियर टू टेम्पल ये जानकारी नहीं है। एक दिन पुलिस ने रेड डाला और प्रोपराइटर और उसके मैनेजर को अरेस्ट कर लिया, और दोनों व्यक्ति जो हैं सेक्शन 7(2)(a) के अंतर्गत कन्विक्शन हुआ। इसका मतलब ये था कि उनका बार 200 मीटर के दायरे से बाहर था, और उनका एक्विटल 7(2)(b) बताता है कि उनका बार जो था 200 मीटर के अंदर नहीं था। आफ्टर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसको आपको डिसाइड करना है। जब आपको डिसाइड करना है, ये बहुत ही ओपन आंसर है, तुरंत उठाकर आर्गुमेंट करके चेतन जे बसवानी का खत्म कर दोगे। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, 2019 में आया। 2019 और 2017 का क्वेश्चन सेम है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। सेक्शन 19 का क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज स्कोप ऑफ सेक्शन 18 क्लास 1 एंड 18 क्लास 2। 18 क्लास 1 और 18 क्लास 2 का स्कोप क्या है। इन द लाइट ऑफ द डिसाइडेड केसेस, जब डिसाइडेड केसेस जाएंगे तो चेतन जे बसवानी के केस हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि चेतन जे बसवानी केस में उसने साफ कह दिया है कि मुझे कन्विक्शन को लेकर के मुझे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्विटल को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चैलेंज हो रहा है तो स्कोप ऑफ द सेक्शन 18 क्लास 1 एंड 18 क्लास 2 को लेकर के। अब हमारा आंसर बहुत तेजी से बढ़ेगा। तुम लोग कहोगे सर खींच रहे हैं, कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। अब ऑर्डर ऑफ एविक्शन, जब इनका कन्विक्शन हो ही गया भाई साहब का, तो कोर्ट ने क्या किया कि तुरंत ऑर्डर दे दिया, इन लोगों का कन्विक्शन हो चुका है, अब प्रीमाइसेस को क्लोज कर दिया जाए। प्रीमाइसेस क्लोज हो गया। फिर गए लोअर कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट ने उनको रेमेडी नहीं दिया, बाकी नहीं, आपका एविक्शन जो मजिस्ट्रेट ने या कोर्ट ने दिया है वो सही है। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी रेमेडी नहीं मिली। फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट में अपील अलाउ कैसे हो गई। सुप्रीम कोर्ट में अलाउ तभी हुई होगी ना जब इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम रहा होगा, तो अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अलाउ ही नहीं करता। रेयर केसेस में ही सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल केस को अलाउ करती है। अलाउ कैसे कर दिया, उस टेक्निकल पॉइंट को हम टच नहीं करेंगे, अदरवाइज केस को नहीं समझ सकते हो और तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे।
लेकिन कोर्ट ने अलाउ किया। जब कोर्ट ने अलाउ किया तो मैंने आपके अब उसी पर हमें डिस्कस करना है। यहाँ हम आपको समझने के लिए लिख दिया हूं कि एशियास बार वाज नॉट सिचुएटेड विद इन 200 मीटर, सो मेन आर्गुमेंट वाज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 18 क्लास 2। अब हमारा जो आर्गुमेंट होगा कि 18 क्लास 1 और 18 क्लास 2 में डिफरेंस क्या है, तो तभी इस डिफरेंस को लेकर के हम समझेंगे कि हाँ, क्योंकि क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन 18 क्लास 1 एंड 18 क्लास 2 डिसाइड विद द लाइट ऑफ द डिसाइडेड केस। अब हमें डिस्कस करना है इसी को लेकर के। सेक्शन 3 क्लास 1 में कन्विक्शन हुआ है, चैलेंज नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 7 टू ए पे कन्विक्शन हुआ था और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कन्विक्शन सही है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेनमेंट न लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्वेश्चन को भी खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस तुम्हारा जो क्वेश्चन लेकर के आए हो कि सेक्शन 18 अप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वही हमें इंटरटेन करना है और वही एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है। The sole question was that whether the section 18 should be applicable in this particular case or not. If applicable, which class, whether the class 1 of section 18 or class 2 of section 18 should be applied. अब आर्गुमेंट आ जाता है। आर्गुमेंट कर देता है, आर्गुमेंट कहता है कि मिलाट्स मेरा कन्विक्शन ठीक है, लेकिन जो मेरा बार था, जो बियर बार है, जो भी बार था, वो बार 200 मीटर के दायरे में नहीं आ रहा था, 200 मीटर के दायरे से बाहर जा रहा था। किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के 200 मीटर के दायरे से बाहर जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे सेक्शन 18 क्लास 1 अप्लीकेबल होना ही नहीं चाहिए। और ये भी स्टेब्लिश फैक्ट था। अपोजिट पार्टी ने मान लिया कि हाँ सर बात सही है, इसका एशियास बार 200 मीटर के दायरे से बाहर था। अब पूरा कंट्रोवर्सी यहाँ पर है कि क्या 18 क्लास 2 अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी का है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस बता दूं कि 18 क्लास 1 में और 18 क्लास 2 में डिफरेंस क्या है। इस डिफरेंस को समझने के बाद हम एक तगड़ा आर्गुमेंट करेंगे और केस को कंक्लूड कर देंगे। सेक्शन 18 क्लास 1 कहता है और क्लास 2 में क्या है, पहले तो जान जाओ कि पूरा होल सेक्शन बात करता है प्रीमाइसेस को कब और कैसे क्लोज करना है। क्योंकि बता दिया हूं कि प्रीमाइसेस को जैसे ही आप क्लोज करेंगे तुरंत कई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, और खास तौर से राइट टू शेल्टर। कोरोना के टाइम में अगर किसी का घर आप सीज करके और कहे कि वेट कर लो के डिसाइड होगा, या इस जाड़े के मौसम में 3-4 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है हिमाचल और उत्तराखंड में, और कहे कि नहीं आपका घर सील कर देते हैं, साल भर बाद डिसाइड होगा तो पता चलेगा कि आप सही है कि गलत, तो उस पर क्या गुजरेगी। 18 क्लास 1 और 18 क्लास 2 में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बता दूं थोड़ा सा। पहला जान जाओ कि इट इज एप्लीकेबल ओनली इन, एक लेमैन की भाषा में पहले बता दूं, इसके बाद हम आपको बताऊंगा, तब टेक्निकल में आएंगे। 18 क्लास 1 जो है मजिस्ट्रेट को पावर देता है, मजिस्ट्रेट को पावर देता है, और 18 क्लास 2 कोर्ट को पावर देता है। तो आप कहेंगे सर मजिस्ट्रेट और कोर्ट में क्या अंतर है, दोनों तो कई बार सेम ही, आप तो अंतर बताते ही नहीं कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट में क्या अंतर है। सीआरपीसी पढ़ाते लेकिन बताते हो नहीं, खैर अलग बात है, नहीं बताता हूं। लेकिन यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है वो एग्जीक्यूटिव साइड से हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एसडीएम को भी मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया जाता है, तहसीलदार को दे दिया जाता है, ये सब भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव के जो पार्ट होते हैं ना, उनको भी पावर दिया गया है। तो खास तौर से जो मैं आपको भेजा था, जो पड़पड़गंज एरिया में कुछ दिन पहले एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास कर दिया था कि ये घर खाली करो, इसमें ब्रोथल चल रहा है या इसमें चलने की संभावना है या फ्यूचर में चलेगा, इस तरह का ऑर्डर दे दिया था। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आता है वह एसडीएम देता है। क्लास 1 की सबसे बड़ी खासियत है कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दे कि ब्रोथल चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, उनके पास डराने धमकाने का बहुत पावर होता है। अब लाख ईमानदार बनते रहिए, पुलिस आकर के मजिस्ट्रेट आकर के 2 बार कर दे और 10 पब्लिक बुला करके और 2 महिला को ला करके खड़ा कर दे, बोल दे कि हम इसी घर में से बाहर निकले हैं, हो गया ब्रोथल, जाइए पूरा घर में मोहर मार देगा कि इसमें ब्रोथल चल रहा था। अब लाख इज्जतदार आदमी, चाहे वो कितना कैरेक्टर साफ सुथरा है, आपका पर्सनालिटी खत्म। क्योंकि हर एक व्यक्ति सेक्सुअली बड़ा सेंसिटिव होता है, वो सोचता ही नहीं कि हाँ एक आदमी इस तरह का गलत हो सकता है या सही हो सकता है, कहेगा कि हाँ बात सही है भाई,
लग रहा था पहले से ही। उसकी लड़कियां भी बहुत छोटा छोटा पैंट पहन करके आती थी। जब उनके पहनावे से नहीं देखता था, लगता नहीं था कि नहीं उसके घर में ऐसा चल रहा है। तुरंत मतलब अपने आप शुरू, बस इतना एड्रेस देखे बस कहानी खत्म। तो हमारे कहने का मतलब है इस तरह के सरकमस्टांसेस में तो स्कूटी मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है। जब स्कूटी मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया और मिसयूज होने के चांस ज्यादा है, जैसा अभी बताया, आपको पॉलिटिकल लिंक है, आप किसी आदमी मजिस्ट्रेट को बुलवा करके तुरंत वो करवा देगा, खत्म हो जाएगा, पूरा करियर ही आपके खिलाफ। तो इसलिए यहाँ पे जो पावर दिया गया है स्कूटी मजिस्ट्रेट के साथ, यह कुछ सेफ्टी के साथ दिया गया है। इतना ब्लाइंड और इतना हार्ड पावर मजिस्ट्रेट को दे दोगे तो समझ रहे हो, कल को हमारे घर पर रेड डाल देगा, कह देगा कि हाँ आपके यहाँ प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था, प्रोफेसर हो और इस तरह से खबर मिल रही थी, बस हो गया, कहानी खत्म। बाकी फ्यूचर में 10 साल बाद क्या होगा अलग चीज है। इसीलिए 18 क्लास 2 में सर्टेन सेफ गार्ड है। सर्टेन सेफ गार्ड में पहला सेफ गार्ड है कि घर को सील करने से पहले, प्रीमाइसेस को सील करने से पहले एक नोटिस मिलेगी। एक नोटिस मुझे मिलेगी कि आपके प्रीमाइसेस को क्यों न सील कर दिया जाए। यह सूचना मिल रही है कि आपके प्रीमाइसेस में ब्रोथल है, ब्रोथल चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। तो यहाँ पे जब हमें मौका मिलेगा तो हमारे पास दो रेमेडी है। पहला रेमेडी है कि तुरंत जाकर के मैं क्लेरिफाई करूं, 7 दिन का नोटिस मिलेगा मुझे कम से कम, तो मैं तुरंत 7 दिन के भीतर जाकर के मैं क्लेरिफाई करूंगा कि मजिस्ट्रेट हाउ कैन यू से दिस, वेयर इज द एविडेंस, सी लुक द माई सीसीटीवी फुटेज। मैं कहूंगा पूरे महीने भर का सीसीटीवी फुटेज हमारे घर पे लगा हुआ है, पूरे सीसीटीवी फुटेज को आप रिकॉर्ड है, आप देखिए कहाँ से जहां से देखना है, हम तुरंत सीसीटीवी फुटेज सप्लाई करेंगे। तो हमें क्लास 1 के अंतर्गत एक वो मिला हुआ, सेफ गार्ड मिला हुआ है कि 18 क्लास 1 विल बी एप्लीकेबल only and only condition, that is after the serving the notice. It means before the application of section 18 class 1 by the executive magistrate, principle of ordi alteram partem should be followed. It means opportunity must be given to hear other person. 18 क्लास 1 की खासियत क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसको हैंडल करता है क्लास 1 को, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर को रिस्ट्रेन करने के लिए, उसके पावर को लिमिट करने के लिए, उसके पावर के मिसयूज को रोकने के लिए एक कंडीशन है कि वो नोटिस देगा, और उस नोटिस को हियरिंग करने के बाद ही इस पर कंक्लूड करेगा कि हाँ इस प्रीमाइसेस को क्लोज किया जाए या नहीं किया जाए। ये पहला कंडीशन है, ये एक ब्रीफ है। लेकिन 18 क्लास 2 क्या कहता है, 18 क्लास 2 में आपको हियरिंग का बात नहीं है। 18 क्लास 2 में 7 दिन के नोटिस की बात नहीं है, सीधा प्रीमाइसेस को सीज करने की बात है। भाई क्यों? 18 क्लास 1 में तो आप कह रहे थे कि हाँ इतना सारा सेफ गार्ड है, 18 क्लास 2 में क्यों नहीं सेफ गार्ड है? रीजन क्या है, 18 क्लास 2 तभी अप्लीकेबल होता है जब व्यक्ति का कन्विक्शन हो चुका हुआ है। जब व्यक्ति का कन्विक्शन हो चुका हुआ है तभी 18 क्लास 2 अप्लाई होगा। अगर कन्विक्शन नहीं हुआ है तो 18 क्लास 2 अप्लाई नहीं होगा। पहली बात, जब कन्विक्शन हो चुका है तो इसका मतलब ऑलरेडी आप ब्रोथल चला रहे थे। आप ब्रोथल चलाने के लिए ही तो आपका कन्विक्शन होगा ना, कि यू आर कीपर ऑफ द ब्रोथल, यू आर रनिंग द ब्रोथल एंड यू हैड बीन कन्विक्टेड। जब ब्रोथल चला ही रहे थे, कन्विक्शन हो ही गया, तब हम ब्रोथल को क्यों न सीज कर दें? तो यहाँ पर 18 क्लास 2 में कन्विक्शन के बाद ब्रोथल को सीज करने की बात आती है, इसीलिए यहाँ पे आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी हियरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3-4 साल तो ऑलरेडी कोर्ट में मैटर पेंडिंग था ही, 3-4 साल केस चला ही, तब तो हियरिंग आपकी हुई ही। इसीलिए यहाँ पे बिना नोटिस के ही आपका घर सीज किया जाता है। और यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है भाई, ये ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, यहाँ कोर्ट करता है आफ्टर द ट्रायल एंड व्हेन द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, only in that circumstances section 18 class 2 is applicable. That's why there is no question of the application of the principle of the audiatum altrum. ये बेसिक अंतर है। अब इन बेसिक अंतर के बाद हम कुछ और डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना होगा। कह रहा है कि इट इज अप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द क्लास 1 ऑफ द सेक्शन 7,
इट इज अप्लीकेबल ऑफ सेक्शन 3 एंड 7। टोटल यहाँ पे 3 एंड 7 में होगा, चाहे क्लास 1 हो, चाहे क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, चाहे 4 हो। ठीक ना। क्लास 1 तब अप्लीकेबल होगा जब मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिल जाए, एसडीएम को आ गया इंफॉर्मेशन की मिलाट। वहां देखिए, वहां पे 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि लड़कियां बहुत आ रही जा रही हैं, कुछ वहां गड़बड़ चल रहा है। इंफॉर्मेशन मिला, दैट इज द सफिशियंट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन पर ही कार्रवाई हो जाती है। अगर हम वेट करने लगे कि आप ब्रोथल चलाइए, हम आपको अरेस्ट करेंगे और आपका कन्विक्शन होगा, तब जाकर के आपका हम ब्रोथल सीज करेंगे, तो समझ रहे हो 10 साल तक ब्रोथल चलता ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला है सेक्शन 718 क्लास 1 इज बेस्ड ऑन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों ना, जब हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि ब्रोथल चल रहा है या ये एरिया ब्रोथल चलने के लिए खोला ही जा रहा है, तो हम पहले ही क्यों ना सीज कर दे। तो ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर बेस्ड है। और हियर अंडर सेक्शन 18 क्लास 1 action is taken only on the basis of the information. That's why this is the rule that any place can't be seized merely on the basis of the information unless until notice has been given and unless and until principle of order alter partem has been followed. 8 मिनट और बचा हुआ है। अब यहाँ पर हियर द कन्विक्शन आइदर अंडर सेक्शन 7 और 8 इज नेसेसरी। समझ गए होगे। अब देखो यहाँ पे क्लास 2 जब अप्लीकेबल होता है, तो तभी क्लास 1 अप्लीकेबल होगा जब विद इन 7 डेज विद इन 200 मीटर में ब्रोथल चल रहा हो। कितने मीटर में? 200 मीटर के अंतर्गत ब्रोथल चल रहा हो। फिर एक बार मैं फ्रेंड आपको बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। फिर अगर आप 18 क्लास 1 आप पढ़ेंगे तो वहां 200 मीटर नहीं लिखा रहेगा, वहां पर सिर्फ ये लिखा रहेगा कि एज रेफर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, इतना ही मिलेगा। तो जब आप को इतना ही मिले तब समझ जाना कि हमें वहां के पॉइंट इतना ही मिलेगा, एज रेफर टू सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 1। तब मान लेना कि क्लास 1 जो है 200 मीटर की बात कर रहा है, और जब रेफर कर दिया गया, सॉरी सेक्शन 7 के क्लास 1 200 मीटर की बात कर रहा है, जब रेफर कर दिया 18 क्लास 1 तो मान लें कि 200 मीटर यहाँ पे कवर करेगा। ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज नो नेसेसरी एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रोथल विद इन 200 डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स आर ऑफ एनी प्लेस। कैसे? क्योंकि इस क्लास 2 में आपको सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 नहीं मिलेगा। क्लास 2 में ये आपको नहीं मिलेगा कि एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 7 क्लास 1, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं होती है। क्लास 1 में आपको मिलेगा कि एज रेफर्ड टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। मालूम है कि जो कह रहा हूं शायद भरोसा होगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी सेक्शन 18 क्लास 2 को थोड़ा सा 1 मिनट ले लेता हूँ। हमें पर चिंता इस बात की रहती है कि 2 मिनट इधर उधर लिया तुम सब क्लास छोड़कर भागने लगोगे, तुम लोग कहोगे सर तो सर के लाइफ में तो कोई है ही नहीं, इसलिए चुपचाप बैठ कर पढ़ा रहे हैं। गलत फहमी मत रहना तुम सब। क्या रितेश? मजाक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा हूँ कि एज ऑफ एनी पब्लिक प्लेस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। जब इसने रेफर्ड कर दिया सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, तो वह तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे विद इन 200 मीटर वाला कंडीशन लागू हो जाएगा, भले ये 200 ना लिख रहा हो। और फिर जब क्लास 2 की हम बात करते हैं तो क्लास 2 कुछ नहीं लिखता है। क्लास 2 देखो सिंपल से कहता है कि ये ना, a court convicting any person of an offense under section 3 or section 7 under section 3 or section 7 may pass order under subsection 1। जब अंडर सबसेक्शन 1 की जब बात करता है ना, तो यह सेक्शन 18 की बात करता है। यह वाला जो सबसेक्शन है 18 वाला है, यह सेक्शन 7 वाला नहीं है। इसी को लेकर के हम यहाँ पे कहते हैं क्लास 1 200 मीटर का डिमांड करता है और क्लास 2 जो है वो डिस्टेंस की डिमांड नहीं करता है। लास्ट चौथा पॉइंट का डिफरेंस है क्या नोटिस इशू होना चाहिए। नोटिस इशू करना मैंडेटरी है, और क्यों मैंडेटरी है बता ही दिया।
अदरवाइज अपोजिट पार्टी एसडीएम साहब को जाकर के 10,000 रुपया दे देगा और कहेगा कि जाकर कह दो कि मुरारी का घर जो है ब्रोथल चल रहा है। बाकी मुरारी को केस लड़ने में और प्रूफ करने में कि हमारा ब्रोथल नहीं चल रहा था, और तब तक उनका यूनिवर्सिटी में मैच खत्म हो जाएगा और स्टूडेंट भी कहेगा कि हम बात भी सही करते हो। देखते नहीं थे आईपीसी कैसे पढ़ाते थे और डब्ल्यूसीसी कैसे पढ़ाते थे, लगते थे कि एकदम रेपिस्ट ही हैं। बहुत कुछ तुम सब पहले आगे आ जाओगे। हमारी वाइफ खुद कहती है कि एकदम 100% सतर्क रहना, अगर छोटा सा भी अगर एलिगेशन लगेगा तो समझिए कि हर एक आदमी विश्वास कर लेगा कि उसका माइंड जो है एकदम कंप्लीट शो कर रहा था कि ही इज द मोरली अनसाउंड, मोरली नॉट गुड पर्सन। तो ठीक है, रिस्क है, लेकिन पढ़ाने का अलग ही मजा है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखो, सो काज नोटिस इज मैंडेटरी, यहाँ नोटिस मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि एसडीएम का आपको बता ही दिया, एसडीएम मिसयूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नोटिस मैंडेटरी नहीं है। इसका रीजन क्या है? भाई साहब ऑलरेडी आपका कन्विक्शन हो चुका है, ट्रायल हो चुका है, जब 3-4 साल 5 साल ट्रायल में ही लग गया तो किस बात का नोटिस? तो क्लास 2 के अंतर्गत नोटिस नहीं है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट अथराइज है। जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अथराइज होता है और कितना पावर का मिसयूज करता है, आपको चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे बहन मायावती जी की हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, एक बार झांक करके देखना कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, दे हैव नथिंग इनर कॉन्शियसनेस, दे ऑलवेज डू अकॉर्डिंग टू द देयर बॉस। बॉस का फोन आ गया कि भाई इतने लोगों को पब्लिक में इकट्ठा करना है या यहाँ इतने लोगों को लेकर के आना है, मुख्यमंत्री जी का आ गया आदेश, वही करेगा। गलत है, सही है, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं है। जैसे क्या हुआ था इमरजेंसी के दौरान, ऑर्डर दे दिया गया था मजिस्ट्रेट इन सबों को कि भैया पकड़ के किसी भी तरह से इन सबों को नसबंदी करा। बस एक बार आदेश आया, सबका नसबंदी मार दिया। तो हमारे कहने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट इज अथराइज इन दिस पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, इन दिस पार्टिकुलर, यहाँ मजिस्ट्रेट अथराइज है और यहाँ पे कोर्ट अथराइज है। कोर्ट का कन्विक्शन ट्रायल एक प्रोसीडिंग, ये नरोवर है। नरोवर क्यों है भाई? नरोवर इसलिए है कि यह तभी अप्लीकेबल होगा जब आपका मकान या आपका ब्रोथल का एरिया पब्लिक प्लेस से 200 के मीटर ही रहे, 200 के मीटर रहे, तो भाई नरोवर हुआ ना भाई। और यहाँ पे क्या है, कोई डिस्टेंस का इशू नहीं है, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो वो कवर कर देगा खट से। अब चीतन जय बसवानी के केस में क्या हुआ, ये भी तो आप जानना चाहेंगे ना। तो चीतन जय बसवानी के केस में क्लास 1 अप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों अप्लीकेबल नहीं हुआ? उसका 2 रीजन आपको बता दूं। पहला रीजन तो ये इसलिए अप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम कह रहे हैं कि उसका बार 200 के मीटर के दायरे में था ही नहीं। उसका बार 200 मीटर के दायरे से बाहर था। जब 200 मीटर के दायरे से बाहर था तो सेक्शन जो क्लास 3 वाला कंडीशन है वो कैसे फुलफिल होगा? थर्ड वाला जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ना कि हाउस ऑफ ब्रोथल मस्ट बी विद इन द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स ऑफ एनी पब्लिक प्लेस। तो जब 200 मीटर के दायरे में था ही नहीं वह बार, तो क्लास अप्लीकेबल होगा ही नहीं, इसलिए क्लास 1 अप्लीकेबल नहीं हुआ। रही बात क्लास 2 का कि क्लास 2 अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो कोर्ट ने कहा क्लास 2 अप्लीकेबल होगा। क्यों अप्लीकेबल होगा? कोर्ट ने पहला रीजन बताया कि देखिए, क्लास 2 के लिए डिस्टेंस का कोई मायने नहीं है, चाहे आपका बार 200 मीटर के दायरे में हो या 200 मीटर के दायरे से बाहर हो। ये कह रहा है तीसरा पॉइंट, यहाँ तीसरा पॉइंट कि देयर इज नो नेसेसरी existence of brothel within a distance of 200 meters. Why? Because subsection 2 doesn't write section 7 class 1. It does not write like this. That's why class 2. तो ये इसलिए एसियास बार जो था, एसियास बार का जो सिचुएशन था, क्लास 2 अप्लाई हो रहा था क्योंकि 200 मीटर के दायरे से बाहर था, इसलिए क्लास 1 अप्लाई हो रहा था। क्लास 2 अप्लाई हो रहा था और क्लास 1 इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा था कि 200 मीटर के बाहर था। रही बात कन्विक्शन का, क्योंकि क्लास 2 तभी अप्लाई होता है जब आपका कन्विक्शन हो, और कन्विक्शन किस सेक्शन में हो, सेक्शन 3 में हो या सेक्शन 7 में हो। अगर बाई चांस किसी व्यक्ति का कन्विक्शन सेक्शन 5 में हो जाए तो क्लास 2 अप्लाई नहीं होगा। किसी व्यक्ति का कन्विक्शन सेक्शन 10 में हो जाए, क्लास 2 अप्लाई नहीं होगा। क्लास 2 तभी अप्लाई होगा जब सेक्शन 3 में कन्विक्शन हो या सेक्शन 7 में कन्विक्शन हो। और इनका कन्विक्शन किस में है? इनका कन्विक्शन सेक्शन 3 में भी है और सेक्शन 7 में भी है।
तो कोर्ट ने कहा कि जब आपका कन्विक्शन है सेक्शन 3 में भी और सेक्शन 7 में भी है, आप अपने कन्विक्शन को चैलेंज भी नहीं कर रहे हैं, तो जब कन्विक्शन हो गया तो यहाँ पर है कन्विक्शन हुआ किसमें, सेक्शन 3 एंड 7 में है। आपका भले ही 200 मीटर के दायरे से बाहर हो, लेकिन क्लास 2 के एप्लीकेशन होने के लिए कोई डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि चेतन जी बसवानी, जो आपके घर पे, जो आपके बार पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जो प्रीमाइसेस को क्लोज किया गया है, वो पूरी तरह से लीगल है और वैलिड है। इसलिए हम आपके अपील को डिसमिस करते हैं, और अपील डिसमिस हो गई। और बाकी जो बारीकियां हैं आप देख सकते हैं, क्लास 1 और 2B में क्या डिफरेंस है, सेक्शन 2A में क्या डिफरेंस है, 200 मीटर का जो कंडीशन है कब कब अप्लीकेबल होगा, सेक्शन क्लास 1 और क्लास 2 में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ ब्रोथल वाला क्या है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और 7 और 18 में भी डिफरेंस जो शुरू में ही बता दिया, सेक्शन 7 प्यूनिटिव है, ये प्रिवेंटिव है, ये पर्सन की बात करता है 7, और 18 जो प्रीमाइसेस की बात करता है। रेशियो ऑफ जजमेंट जो बताया वही है, कुछ और नहीं है। बस एक बात है, कृष्णा अय्यर ने बहुत क्रिटिसाइज किया पार्लियामेंटेरियन का। कृष्णा अय्यर ने कहा कि पार्लियामेंटेरियन लॉ ऐसे बनाते हैं लगता है उनको कहीं भागना है, हास्टी मैनर में बनाते हैं और बिना दिमाग का बनाते हैं, और कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन जो लॉ वास्तव में बनाना चाहते हैं वो बनाया ही नहीं है, लॉ बनाए कम में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट किए। और इस तरह का क्रिटिसिज्म भी है जो कि कृष्णा अय्यर खुद कहते भी हैं। और डिसीजन है, ये डिसीजन आपका लास्ट पॉइंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली आई कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस Honorable Supreme Court said that whatever restriction has been imposed on the SCR's power under Section 18 Class 2, that was the applicable, that was the good, and in this way, your case discussion, that is the Chetan J. Baswani, is complete, and I am going to start the recording. And even if you have certain doubts, that's why you may ask. But first of all, I will want to give priority to the section A and F. ए और एफ से किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले भाई। चलिए, एनीवन कैन आस्क द क्वेश्चन। सर कन्विक्शन सेक्शन 18 क्लॉज 2 के अंदर हुआ सर। अच्छा, देखिए उनका कन्विक्शन नहीं हुआ था सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 के अंतर्गत कन्विक्शन नहीं होता है, सिर्फ प्रीमाइसेस को वो करने, बंद करने की, क्लोज करने के लिए बात होती है। और मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, उनका कन्विक्शन सेक्शन 3 और 7 में ऑलरेडी हो रखा था। सेक्शन 3 कहता है ब्रोथल को चलाने के लिए, और सेक्शन 7 कहता है ब्रोथल को पब्लिक प्लेस में चलाने के लिए। ब्रोथल दो जगह चलाए जा सकते हैं, एक तो सीक्रेट एरिया में आपका खुद का घर है, हजारों या 500-200 मीटर के दायरे में कुछ है ही नहीं, जंगल झाड़ी के सिवा, सिर्फ ब्रोथल आप चला रहे हैं, वो नॉर्मल ब्रोथल हो गया, सेक्शन 3 कवर कर लेगा। लेकिन अगर वही ब्रोथल किसी यूनिवर्सिटी के पास चलाएं, किसी डॉक्टर के पास चलाएं, हॉस्पिटल के पास चलाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास चलाएं, तो आप जो सेंसिटी है अब यूनिवर्सिटी के पास चलाएंगे ब्रोथल, तो आप समझ रहे हैं कितना ग्रेव मैटर है, ग्रेव है कि नहीं है। नॉर्मल जगह पे चलाना, यूनिवर्सिटी के बगल में चला देना, आप हॉस्पिटल में चला देना, आदमी दवा लेने जाएगा, पैसा सोचेगा कि हम बीमारी के लिए दवा खरीदेंगे, और जब पहुंचा तो रास्ते में पता चला कि अरे भाई इधर तो कुछ और ही है। वो दवा का जो अपने पत्नी के लिए जो दवा खरीदना है, वो पता चलेगा कि प्रोस्टिट्यूट को पैसा देकर के सेक्स करके चल देगा, पत्नी मरती रहेगी। तो हॉस्पिटल के पास, भगवान को मंदिर और मस्जिद में घंटा बजाने जा रहे हैं, पता चले कहीं और घंटा बजा रहे हैं आप, तो इस तरह का जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाएगा, तो वहां ग्रेव है। तो इसका कन्विक्शन बार चलाने के लिए हुआ सेक्शन 3 में, और सेक्शन 7 में इसलिए कन्विक्शन हुआ कि वह एक पब्लिक प्लेस में, आसपास के एरिया में यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल थे उस एरिया में चला रहा था। कन्विक्शन 3 और 7 में हुआ, जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसने चैलेंज भी नहीं किया। जब इसके घर को जो बार जो था, उसके दुकान को, बार को जो सीज किया गया था, सिर्फ उसी को कहता था कि इस बार को जो रिस्ट्रिक्शन खोल दिया जाए ताकि दूसरा आदमी उसमें बार रन करा सके, दूसरा आदमी अपना दुकान चला सके, दूसरा आदमी अपना स्कूल कोचिंग खोल सके। तो सिर्फ इसका यही पॉइंट था।
18 को लेकर के कि जो बार इम्पोज किया गया है उसके बार को खत्म करिए और रेस्ट्रिक्शन को खत्म करिए और बार को ओपन करने का आदेश दीजिए। अब आपको समझ में आया? थैंक यू बोलो यार। चलिए अब क्लोज करें, किसी को डाउट है? चलिए, थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स फॉर टेकिंग द क्लास एंड हैप्पी न्यू ईयर। Thank you, sir, and same to you. Thank you so much, sir. सेम टू यू, सेम Thank टू you, यू, sir. Yes, sir. सेम टू यू। थैंक यू का सेम टू तो नहीं होगा यार, लेकिन ठीक है, वेलकम होगा। एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा था ना, इसलिए मैं सेम टू यू बोल रहा हूँ।